Please put your mic off, everyone. CBSE and state board students, those who are attending only grammar classes, have to attend all the classes. Okay? जो सिर्फ ग्रामर के क्लास अटेंड कर रहे हैं, सब सब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, करना है. As you are readily available for grammar classes, why you are not attending the other classes? Yes, Harkirat, Avneet, अब बाकी के साइंस एंड मैथ्स, व्हाई यू आर नॉट अटेंडिंग? Ma'am, our periodics are going on. Okay. And Mansi, what about you, Mansi? You are also not attending other classes. Okay. So today is our Hindi grammar class. So as we have decided कि after completion of most of the part, we have to move towards the writing skill. Okay, हम हमारा writing skill start करने वाले थे. So कुछ points है that I have to teach you, but before that, writing skill के लिए I wanted to prepare you. Okay, so today we'll be checking your imagination power and your speaking skills. For writing, आपको खुद को कुछ आना चाहिए, then only you are able to write, right? So I'll be giving you topics today, and you have to speak on that. Okay, your content should be at least 10 to 15 lines long. जो भी आपका कंटेंट होगा वो 10 to 15 लाइन्स तक होना चाहिए. आई एम प्रोवाइडिंग यू द टॉपिक्स. आप 5 मिनट तक उस टॉपिक्स पे सोच सकते हो, एंड देन आप अपना नाम लिखोगे चैट बॉक्स में, एंड यू विल बी टेलिंग मी द टॉपिक, एंड उसके बाद आई विल आस्क यू टू पुट ऑन योर माइक, एंड लाइक दैट आप स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ सरप्राइज टेस्ट. यस, आप एक सरप्राइज टेस्ट के तौर पर आज का लेक्चर ले सकते हो. सो आई एम गिविंग यू टॉपिक्स. यू कैन हैव 5 minutes to think on the topic, whatever you want to speak on. जिस पे आपको बोलना है आप ले सकते हो 5 मिनट. वाई आई एम गिविंग यू ओनली 5 minutes? बिकॉज एग्जाम में भी यही होने वाला है. Yes, 2 to 3 topics they are giving, and you have to select only one and start writing on that in a minute only. So I'm giving you 5 minutes now, and your time starts now. It's 8:04. Okay, I'm going to read this for you. गणतंत्र दिवस पर निबंध, क्रिसमस पर निबंध, मेरा भारत महान, पेड़ पौधों का महत्व, भारतीय समाज में नारी का स्थान, आदर्श विद्यार्थी, समय का सदुपयोग, देश प्रेम, राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का महत्व, नदी, मकर संक्रांति, प्रदूषण, नारी शिक्षा, विज्ञान के चमत्कार, परोपकार, भारत के गांव, मेट्रो रेल, दूरदर्शन, मेरा विद्यालय, राष्ट्रीय पक्षी मोर. ओके, यू आर फ्री टू चूज एनी टॉपिक यू वांट. इसमें से कोई भी टॉपिक आप चूज कर सकते हो. जो भी आपको चाहिए वो कोई भी टॉपिक यू कैन चूज एंड स्पीक ऑन द सेम. जो Ma'am, we have to write or speak. स्पीक ऑन, यू हैव टू स्पीक ऑन द सेम. ओके, see those students who have joined late, again I'm telling you that this is a surprise test for you. You have to speak on this topic. You can select anyone that you want. Okay,
Your content should be 10 to 15 lines long. Again, I'm repeating, you have to speak on this, any topic from this. Any topic you can choose. It's 8 6 at 8 9. I'll be asking you. Otherwise, you can write your name in the chat box and then can put on the mic for topic and the rest essay you can say. Again, I'm reading Ganatantra Divas, Makar Sankranti, Christmas, प्रदूषण, मेरा भारत महान, नारी शिक्षा, पेड़ पौधों का महत्व, विज्ञान के चमत्कार, भारतीय समाज में नारी का स्थान, परोपकार, आदर्श विद्यार्थी, भारत के गांव, समय का सदुपयोग, मेट्रो रेल, देश प्रेम, दूरदर्शन, राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का महत्व, मेरा विद्यालय, नदी, राष्ट्रीय पक्षी, मोर. Okay. Any one topic you can select. You are free to select any one topic that you want. 2 minutes left. Only 1 minute. Have you selected a topic? Yes. This is your हिंदी ग्रामर क्लास. आपको जो भी बोलना है आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलना होगा. ओके. चलिए. Let's start with Avneet. Avneet, बोलिए. You can put on your mic, Avneet. Ma'am, 1 minute. Okay. Yes, anyone else? I am writing. Okay, fine. Yes, anyone else wants to talk? Yes. Write your name in the chat box. Okay, Harsuk. Yes, Harsuk, बोलिए. Which topic you will speak on? मैम मैं गणतंत्र दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ. Okay, बोलिए. स्वतंत्र भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पहली बार भारत की राजधानी दिल्ली में लागू किया गया था. इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. गणतंत्र दिवस भारत का प्रमुख राष्ट्रीय पर्व है जिसे पूरे देश में अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है. स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों तथा गैर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है और हमारे शहीदों को याद किया जाता है.
भारत की राजधानी दिल्ली में यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राजपथ पर लाखों लोगों की भीड़ के समक्ष भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस परेड में अर्ध सैनिक बल भी भाग लेते हैं। इस अवसर पर स्कूलों के बच्चे, देश के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यक अत्यंत आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। विभिन्न राज्यों की झांकी सबका मन मोह लेती है। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए विदेशों के राजदूत तथा सम्मानित व्यक्ति आते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में हिंदी कवि सम्मेलन और उर्दू मुशायरे का भी आयोजन किया जाता है। इस दिन हमें अपने देश की रक्षा तथा सेवा की शपथ लेनी चाहिए और देश के सभी कानूनों की पालना की शपथ लेनी चाहिए। धन्यवाद। Very good, very nice. Yes, those who have joined late, for their information, again I'm telling, आपको ऑन टाइम ज्वाइन होना है सो दैट ये सारे रिपीटेशन ना करने पड़े. टिल नाउ आई हैव रिपीटेड दिस 3 times and this is now 4th time I'm repeating again. See, I have given here some topics. You have to select one and you have to speak 10 to 15 lines on the same. This is kind of surprise test for you. Okay? As we are moving towards our writing skills, so I want to prepare you for the same. So इसके लिए we have to check your imagination or your capability of writing. So for that, you can select any one topic from this and can speak on the same. Okay, this is the last time. Now I'm not going to repeat for anyone anything. If you want, you can take a screenshot of this as I have to check for other students also who already have prepared for the same. Okay, write your name in the chat box, everyone. Next is Shweta. Shweta Verma. Yes, you can start with your topic, Shweta. मेरा भारत महान, मेरे देश का नाम भारत है। यह वह पावन भूमि है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। यह संसार का सबसे अच्छा देश है। यहाँ पर बड़े बड़े महाज्ञानी ऋषि महापुरुषों वीरों का जन्म हुआ है। यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। मेरा भारत देश के हर धर्म, भाषा और संस्कृति को अपनाया है। मेरा भारत देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। यहाँ पर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसे पवित्र नदियाँ बहती हैं। मेरा भारत देश बहुत विशाल देश है। यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं बोली जाती है, फिर भी यहाँ के लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरा भारत देश महान है। Very good. Very nice, Shweta. Next is Aryan. Aryan Srivastav. Yes, Aryan. Which topic you have selected? यस मैम। मैं गणतंत्र दिवस पर बोलना चाहूंगा। Oh, yes, please. गणतंत्र दिवस भारत में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कई त्योहार सामाजिक होते हैं और कई राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। भारत में 3 राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं: गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस का इतिहास: भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, परंतु उस वक्त इसका अपना कोई संविधान नहीं था। भारत का मूल्य रूप से अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था। भारत में गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दिल्ली के राजपथ पर अनेक राज्य की झांकियां निकलती हैं। सेना के जवान अपना परेड दिखाते हैं और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी देश के विभिन्न लोगों को सम्मानित करते हैं। इस कार्यक्रम पर अनेक लोग शामिल होते हैं।
एवं देश विदेश से लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। स्कूलों में भी ध्वजारोहण किया जाता है एवं बच्चों के साथ मिलजुल कर इस त्योहार को बड़े खुशी और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। Okay, very good. So, at your level, this topic is best one. ये जो टॉपिक अगर आप सिलेक्ट करोगे तो लिखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यू कैन एड ऑन लाइक बहुत जो भी आप अभी तक देखते आ रहे हो, क्योंकि गणतंत्र दिवस तो हम हर साल मनाते हैं, राइट? तो जो भी आप देखते आ रहे हो, ये सारी चीजें आपको इसमें ऐड करने मिलेगी। तो ये टॉपिक सिलेक्शन इज वेरी गुड। यस, नेक्स्ट इज मानसी। Yes, ma'am. Ma'am, am I audible? यस। समय का सदुपयोग। समय सबसे कीमती वस्तु है। इसमें मूल्यवान धन इससे मूल्यवान धन कुछ नहीं है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। यह सबके लिए समान है और सबके पास बराबर मात्रा में विद्यमान है। जो व्यक्ति समय के महत्व को समझ लेता है, वह अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जो लोग समय के साथ चलते हैं और अपना काम समय पर कर लेते हैं तथा आज का काम कल पर नहीं टालते हैं, वो अपने जिंदगी में अवश्य सफल होते हैं। समय का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि हम इससे समझ लेते हैं तो हमारे पास किसी की भी कमी नहीं होगी, और यदि हम इसे नहीं समझ पाते तो हमारे पास समय नहीं होगा। हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि बीतता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ओके, गुड। आर्या। मैंने पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। इसके अलावा पेड़ हमें ईंधन, भोजन, फल फूल, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, रबर, तेल और कई अन्य उपयोगी चीजों प्रदान करते हैं। पेड़ के बिना मनुष्य जीवन, जंतु, पशु पक्षी जीवित नहीं रह सकते। पेड़ सोने के समान मूल्यवान होते हैं। इसलिए पेड़ को धरती का ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, गुड। यस, नेक्स्ट। यस। Yes, next student, write your name in the chat box. Riddhi. Yes, Riddhi. यस टीचर। टीचर, मोर। हाँ, बोल। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत ही सुंदर पक्षी है। यह पक्षियों का राजा हाँ, बोल रिद्धि।
Okay, if you want, you can take your time. Manas. ऐसे तो भारत में कई नदियां हैं। उसमें उसमें से एक गंगा नदी है। गंगा भारत की नदी है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और बंगाल घाटी में विसर्जित होती है। यह माना जाता है कि गंगा नदी पापियों का उद्धार करने वाली नदी है। भारतीय धर्म ग्रंथों में न, न, भारतीय धर्म ग्रंथों में नदी इसे धर्म ग्रंथों में इसे पवित्र माना गया है और इसे मां का दर्जा दिया गया है। गंगा हिमालय से स्थित गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। हिमालय की बर्फ पिघलकर इसमें आती रहती है। गंगा नदी का पानी जल्दी खराब नहीं होता और कई लोग इसमें पैसे और सोना डालते हैं। Okay, good. Okay, next Nidhi. यस मैम, आई एम ऑडिबल। Yes. दूरदर्शन। मेरा नाम निधि है और मैं दूरदर्शन इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। तो दूरदर्शन हमें तो पता ही है, हर घर में रहता है वो। पहले के जमाने में दूरदर्शन ही नहीं हुए करते थे, लेकिन जैसे मानव की बुद्धि बढ़ती गई वैसे ही उसने कई क्षेत्रों में उन्नति हासिल की। तो दूरदर्शन के कई फायदे हैं पर कुछ नुकसान भी है। हम दूरदर्शन की सहायता से अलग अलग राज्य के समाचार हमें मिलते हैं और Yes, continue. Yes, Nidhi, you can continue. ओके, हम दूरदर्शन की सहायता से अलग अलग राज्य के समाचार हमें मिलते हैं और राज्य ही नहीं अनेक देशों की स्थिति भी पता चलती है। हम उस पर गाने, छोटे बच्चों के कार्टून, फिल्म आदि भी देख सकते हैं, पर उससे हमारे आंखों को नुकसान भी हो सकता है। कुछ लोगों को ऐनक भी लग सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वे दूरदर्शन पर जो उन्हें देखना चाहिए वह नहीं देखते, पर कुछ और जरूर देखने में दिलचस्पी रखते हैं। यह एक गलत बात है। अगर हर कोई दूरदर्शन का अच्छे से उपयोग करे तो उससे जरूर लाभ होगा। थैंक यू। Okay, good. Next Karnika. मैम, आई एम ऑडिबल। Yes. मेरी पाठशाला का नाम पूज्य आचार्य बीसे है। मेरी पाठशाला बहुत बड़ी है। इसमें कई कमरे हैं। इन कमरों में कक्षाएं लगती है। कुछ कमरे में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर रूम आदि है। एक कमरा कार्यालय है। यह हमारे प्राध्यापक बैठे हैं। प्राध्यापक के कमरे स्वच्छ और हवादार है। पाठशाला में अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। हमारे शिक्षक बड़े योग्य हैं। पाठशाला के सामने खेल का एक बड़ा मैदान है। मेरी पाठशाला सुबह 7 पर शुरू होती है और 12 बजे दोपहर को बंद हो जाती है। मैं हर दिन स्कूल जाती हूँ। हमारे प्रधानाध्यापक श्रीमान भरत ठाकुर सर हैं। वे हम बच्चों से बहुत मधुर व्यवहार करते हैं।
मेरी पाठशाला सबसे अच्छी है। मैं वहाँ हर दिन नई बातें सीखती हूँ। मुझे मेरी पाठशाला बहुत पसंद है। ओके, वन करेक्शन, प्राध्यापक। यस, श्रेयांशी। मैम, एम आई ऑडिबल? यस। हमारा विद्यालय का नाम है विवेकानंद केंद्र विद्यालय। हमारा विद्यालय हमारे विद्यालय में 3 बिल्डिंग है। एक है प्री प्राइमरी सेक्शन, एक है प्राइमरी सेक्शन और एक है सेकेंडरी सेक्शन। हमारे विद्यालय में बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेरे विद्यालय में सभी प्रकार के स्पोर्ट्स गेम की प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारे विद्यालय में समय समय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। हमारे विद्यालय काफी साफ सुथरा है क्योंकि ये यहाँ पर स्वच्छता भारत के तहत साफ सफाई पर ध्यान दिया जाता है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, आयुष। यस मैम। प्रदूषण प्रदूषण इस समय संसार की सबसे विकट समस्याओं में से एक है। यह मानव के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। इसने संपूर्ण संसार तथा मानव जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। प्रदूषण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण तथा तीसरा ध्वनि प्रदूषण। यद्यपि सभी प्रकार के प्रदूषणों का सारा कारण स्वयं मनुष्य होता है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए समय समय पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। फलस्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है तथा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल हमारे जीवन का आधार है। बिना जल के पृथ्वी पर जीवन असंभव है, किंतु हम अपने कार्यों से जीवन के इस आधार को भी खत्म कर रहे हैं। विभिन्न कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, नालों का पानी सब नदियों में मिला दिया गया है। इससे नदियों का जल इतना प्रदूषित हो जाता है कि प्रयोग करने योग्य नहीं रहता। यातायात विभाग को अधिक मात्रा में धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर दंड लगाना चाहिए। ओके, बट इसे खत्म करने के लिए कुछ अच्छी तरह से लाइक जैसे आपने उपाय बताए, ऐसी लाइन ऐड करनी चाहिए जैसे कि जो भी प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो लिखने के बाद आप ये लिख सकते हो कि अगर हमें हमारा जीवन स्वास्थ्यपूर्ण बनाना है तो हमें हमारे देश को प्रदूषण रहित बनाना होगा, ऐसे कुछ लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज तेजल। तेजल। यस टीचर। मेरे विद्यालय का नाम आज्ञा क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के माध्यमिक विद्यालय शिरडोने है। यह एक आदर्श विद्यालय है। मेरा विद्यालय शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकांत स्थल पर है। यह 2 मंजिल इमारत में बना हुआ है जिसमें 10 हवादार कक्ष है। हमारे विद्यालय में 10 अध्यापकों का स्टाफ है और 4 चपाई, एक दबान है। मेरा विद्यालय कक्षा 5वीं से 10वीं तक है और यहाँ लगभग 800 विद्यार्थी पढ़ते हैं।
विद्यालय से विद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त करके बच्चे अपना भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। मेरी पाठशाला मेरा विद्यालय मुझे बहुत पसंद है। Okay, good. Avneet? Yes, Avneet. यस मैम। पेड़ों का महत्व। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हमें पेड़ों से फल, दवाई, लकड़ी, कागज, अनाज और कई अन्य चीजें मिलती हैं। पेड़ ऑक्सीजन देकर हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। वे वातावरण में मौजूद हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। वे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कई छोटे जीव पेड़ पर अपना घर बनाते हैं। पेड़ हमें छाया और सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमें सभी लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हमें अपने वातावरण को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें इस निबंध से ये शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और हमें अधिक से अधिक अपने घरों के बाहर पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद। Very good. Next, Riddhi. यस टीचर। मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। वह उड़ सकता है। मोर पक्षियों का राजा होता है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। मोर भारत के हर एक कोने में पाया जाता है। मोर की चोंच लंबी होती है। मोर Write properly first. मोर बहुत सुंदर होता है। Okay, good. Well tried. Next, Sachi. यस टीचर। मोर Yes, please. Make it fast. मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर को मयूर के नाम से भी जाना जाता है। मोर के सिर पर मुकुट की तरह कली होती है। मोर के पंख पर हरे, नीले, पीले और सुनहरे रंग के चाक बने होते हैं। मोर की गर्दन नीली रंग की होती है। मोर बारिश में पंख फैलाकर नाचता है। मोर से अगर आप खुद से लिख रहे हो तो आपको पढ़ते वक्त तकलीफ नहीं होनी चाहिए. Don't copy from anywhere. Okay, please. You are making yourself fool in this sense. श्लोक. यस मैम। मेरा विषय है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ये भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह मेरे पसंदीदा त्योहारों में से एक है। मकर संक्रांति भारत के साथ साथ पड़ोसी देश
जैसे नेपाल में भी मनाया जाता है। यह यह बहुत खुशी का मौका है, खासकर बच्चों के लिए। यहाँ इस मौके पर हम छोटे बच्चों को कुछ अलग अलग तरह की पतंगे उड़ाने का मौका मिलता है, और हम यह देखते हैं कि किसकी पतंग सबसे ज्यादा ऊंची जाती है। और इस मौके पर हमें कुछ पकवान भी खाने को मिलते हैं। यह तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बिहार इसमें त्योहार इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। Okay. Till now, one different topic. Good, Shlok. See, by hearing each and everyone अलग अलग टॉपिक के अलग अलग इंफॉर्मेशन, you are getting some more information regarding your topic also, that topic you have selected. उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो आप. Yes. So this is going to be very useful session for everyone. Next is Sapphire. May I know your name, please, once again? How to pronounce it? Ma'am, it's me Shakir. Yes, once again. Ma'am, Safir. Okay, thank you. Yes, you can start. विज्ञान का चमत्कार। आज विज्ञान इतनी उन्नति कर चुकी है कि कुछ भी करने का सोचने से पहले ही वह चीज हो चुका होगा। हमारा भारत भी इस विज्ञान में पीछे नहीं है। हमारे भारत ने आजकल के सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले चीज जैसे कि यूएसबी को बनाया है। विज्ञान के चमत्कार से हमने मानव जीवन को सरल बनाने का प्रयास भी किया है। आज हम घर बैठे बाहर का चित्र देख सकते हैं इस विज्ञान की वजह से। यह विज्ञान आज हमें चांद पर, मंगल ग्रह और आदि ग्रहों पर पहुंचने का में सफल है। हम आज धरती को छोड़कर अलग ग्रहों में रहने का योजना बना रहे हैं। इस विज्ञान के जितने फायदे हैं उससे भी कुछ ज्यादा इसके खराब फायदे हैं। इनमें अच्छे फायदों को ढूंढकर उपयोग करने से हम विज्ञान को और भी ज्यादा उन्नति करा सकते हैं। Okay. धन्यवाद। Good. Yes. खराब फायदे नहीं होता है. We can say नुकसानदायक चीजें है, ऐसे कुछ आप बोल सकते हो. Okay. Yes. श्वेता, as you have already said, so आपको फिर से चांस नहीं दिया जाएगा, because everyone should get the chance. We have limited time and सबको चांस मिलना चाहिए. Please. Sorry for this. Yes. अनिकेत. Yes, ma'am. Yes, Aniket, I can't hear you. अनिकेत, आवाज येत नाहीये तुझा. Okay, I think some network issue is there. Next is Diksha. Diksha. Okay, any other student can write your name in the chat box who wants to say. Otherwise, should I give chance to Shweta who wants to say? Yes, anyone? किसी को बोलना है तो please write your name in the chat box. Yes, Aniket, पुन्हा एकदा try कर. You can put on your mic. No, आवाज येत नाहीये. किसी को Yes, 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 yes. हाँ. Okay, श्लोक. Yes, Aniket, बोल.
ओके, यू कैन आप किसी और लेक्चर में भी बोल सकते हो, इट्स फाइन. नाउ स्नेहा, पुट ऑन योर माइक स्नेहा. यस स्नेहा, आर यू देयर? यस टीचर. ओके, बोलिए. दिवाली. दिवाली पर दिवाली was there in the topic. Yes स्नेहा, टॉपिक में दिवाली था? नो ना? ओके, फिर भी आप बोलो, अगर आपने प्रिपेयर किया है तो 1 चांस आई विल गिव यू. बोलिए. दिवाली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है. दिवाली पर सब बच्चे पटाखों का आनंद लेते हैं. दिवाली पर हर घर को दीपों से सजाया जाता है. यह त्योहार 5 दिन तक चलता है. दीपावली सबको खुशियाँ देते हैं. Okay, so everyone is done with their respective topics. अवनीत, शिव एक्चुअली उसने पढ़ा नहीं था शायद कोई टॉपिक, so I have given her an excuse. Okay, so as yours first one is done, so no second chance. Okay, please. Yes, if everyone is done, should I stop it here? Yes, if you are done, we are going to stop. Those who have done can leave. जिनका हुआ है they can leave. Okay, most of the students have done, right? Okay, so today we are going to stop over here. From next class we will be moving to your writing skills. Okay, and this session is going to be useful for that. Okay, so you all can leave the class. Bye bye everyone. Bye bye. Bye. Bye.